So my first question is, Sej bhai, this one's for you. Please tell me 6 back-to-back hits. And jaisa maine kaha, Gudachari, a regional super duper hit film. And from that film to 2022, jab itni sari back-to-back hits diye, and now G2, the most awaited pan-Indian film. What do you have to say about this journey of yours? Yeah, I feel very blessed. तो ये जिन छः हिट की बात कर रहे हैं उनमें से 5 तो तेलुगु फिल्म के हैं. But the sixth one was major, and I'm so glad that it was so loved over here, overseas, everywhere that I go. The kind of respect I get for major is extraordinary. तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार हम हमेशा से इंडियन फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, बस बात ये था कि हम मुंबई में नहीं हैदराबाद में बना रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने इंडियन फिल्म्स को यहाँ पर भी लेके आए. Right. And you've always been pretty vocal about this कि भाई वो Indian films होनी चाहिए, pan-Indian films जिनकी बात हम करते हैं. Yeah, I truly believe that we're Indian first. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे जगह पे लॉन्च करें जहाँ पर लोगों को पता चले कि हम भी इंडियन फिल्म्स ही बनाते हैं. Right. So there's an all-time Telugu classic called Gudachari 116, which was remade in Hindi as Farz with Jitendra Saab back in 1967. So as a kid, I saw it in black and white. I saw Mahesh Babu sir's dad, superstar Krishna, rest in peace, it recently passed. It was his film that inspired me to, I don't know, maybe want to be James Bond, want to be sort of एक actor बनने का एक वो एक होता है ना. As a very small child, I saw that. So Gudachari, the word itself means jasoos in old Telugu. It's not part of regular usage, but it essentially means a spy. So we wanted to do an homage. So when I did the first part in 2018, I used the same agent number 116 as a dedication to Krishna Garu. And even Jitendra Saab uses 116 in Fars, if you look it up. Then we realized that this has the potential to be something massive. तो हमने सोचा कि इस बार हम नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले. It has to be Kashmir to Kanyakumari to Kansas. So we decided to make this film in an extremely sort of I wouldn't say the word epic. I'd just say the scale of it is very big, and for it I'm so glad that I have the support of the producers of Kashmir Files, the producers of Kartikeya 2, and obviously sort of the OG Anil Garu also. He's sort of given so many big blockbusters in the past. I was just happy to know कि Gudachari was dubbed into Hindi with a very funny title called Intelligent Khiladi. लेकिन 11 करोड़ लोग देख चुके हैं उसे. तो कहीं ना कहीं शायद ये इंटेलिजेंट खिलाड़ी 2 है. बट हमारा इरादा ये है कि हमने जिस तरह से ओरिजिनली प्रेजेंट किया, इस बार हम प्रॉपरली ओरिजिनली हम ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं. ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी जी सीरीज बन रही है, सो पॉसिबली कि हम आगे G3 G4 भी देखें. सो जैसे हमारे यहाँ पे एक अभी स्पाई यूनिवर्स आया, वी हैव पठान एंड टाइगर. सो अगर G3 या G4 में देखें, आप किस एज अ एजेंट, किस एक्टर को आप एज एन एजेंट देखना चाहेंगे? मतलब बी इट समांथा और महेश बाबू, a team up that actually will be big screen के, it will be a treat. I'm not quite sure. At the moment, I think I'm just selfish. No, but I think the bigger truth is that it's a huge franchise, and we don't know which direction it will go in. But for us, it's always the story that determines it. ऐसा नहीं, मतलब सुनने में अच्छा लगता है यार, 4 एक्टर का नाम लो और फिर बोल दो. But the truth is, जैसे कहानी डिमांड करेगी, we are going to be bringing different sorts of actors into the film. And frankly, we'll also be bringing actors from Hindi cinema, actors from international cinema, and actors from other Indian cinema into the film. कि आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में, लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है, और भी पहले टाइगर जिंदा है, और बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज करने की वजह उस जॉनर में? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, हिंदी सिनेमा में 2 किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं. वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक
इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ जो रियलिज्म में राजी जैसी फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स, बहुत ही रियलिस्टिक. एंड देन द अदर इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, यू नो, लाइक पठान एंड वॉर एंड ऑल दैट. I think the G series is something else. It's, I would say, it's a decorated reality. मतलब realistic है, but काफ़ी decorated है, and it's very edgy. तो शायद मैं ये कहूँगा कि the standard of it is not so much about making it more commercial. The standard of it is making it more cooler. You know, एक style दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चलो, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है, यू नो. सो आई थिंक हमारे सीरीज में वी आर नॉट लुकिंग टू, यू नो, इट्स नॉट लाइक अ सॉन्ग डांस काइंड ऑफ series. It is a very edgy and cool series. That's the goal that we're going for. But all of it is rooted again in a very realistic thing कि हम it's about India. You know, if you've seen part 1, the dubbed version, it's about India. The whole thing, it's a very stylistic take on India. The whole point of it is what he wants to do for the country. यार जिस तरह का रेस्पॉन्स बाहर मिल रहा है, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सराह रहे हैं आपको, आपके काम को, और जितना भी काम आपने किया है उसको बहुत तारीफ, बहुत लोगों ने सराहा है, और शुरू से लेकर अब तक कहीं रुके नहीं हैं विद बाय गॉड ग्रेस, यू नो. और वी लव कि आप कंटिन्यू करें, और जिस तरह का जो भी अभी हमने ऑन स्क्रीन देखा वो बहुत माइंड ब्लोइंग था. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, इतना सारा प्यार इतने कम वक्त में, जो स्टारडम आपको मिला है उसके लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एज अ जर्नलिस्ट. जितना प्यार आपको और जितना प्यार आपके काम को मिला है, कहीं इतने सारे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, डर लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, यू नो, इन बिगिनिंग ऑफ माई करियर, यू नो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इन इंडस्ट्री, आई डेंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स. मैं बाहर से आया था. सबसे बड़ी बात यह है कि यू नो, काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदी ऑडियंसेस ये सोचते हैं यार 1 साल में क्या स्टारडम कमा ली बंदे ने. मैं बस ये कहूँगा, इट टुक मी 12 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. ओके, एक सवाल और पूछना चाहूँगा. आपने जब भी इंटरेक्ट किया, शुरू से मैं देख रहा हूँ आप बड़ा जोर दे रहे हैं इस बात पे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई रियली अप्रिशिएट, यू नो, व्हाट यू ट्राइंग टू कन्वे. इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, यू नो. ये बहुत जोर दे के कहा जा रहा है, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए. रीजनल, और वो मराठी है, और वो साउथ हैं, वो तेलुगु फिल्म है. कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह? हालांकि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, हिंदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे जोर दे रहे हैं आप. हाँ, बिकॉज अभी जैसे अभी हम बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर फिल्म इस वक्त है वेड. नाउ वेड इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तेलुगु ब्लॉकबस्टर मछली. तो मछली ब्लॉकबस्टर है, ये वेड भी ब्लॉकबस्टर है. इन दी ओल्ड डेज वी हैड अ फिल्म रामुडू भीमुडू, जिसको दिलीप कुमार साहब ने बनाया राम और श्याम. फिर उसको रीमेक किया गया सीता और गीता. राम और श्याम को ही सीता और गीता में बनाया, बट देन हमने फिर से सीता और गीता को रीमेक किया गंगा मंगा करके. सो व्हेन यू सी दिस इंटरचेंज, दिस क्रॉस पॉलिनेशन, जिस तरह के आइडियाज़ हम एक के आइडियाज़ को अपनाकर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं एक दूसरे को, वी आर इंडियंस फर्स्ट. शेष, अभी फिलहाल यू नो, दिस इज़ अ स्पाई फिल्म एक्चुअली, यू नो, और अभी पठान में भी यू नो जब वो वर्ड रॉ यूज़ किया गया था, आई थिंक सो कि स्पाई में भी शायद ऐसा कोई वर्ड यूज़ करे जहाँ पर रॉ करके वर्ड आया हो, तो सेंसर ने चेंज करने के लिए कहा था इनफैक्ट, यू नो. तो उस चीज़ को लेकर आप लोग एज अ फिल्म मेकर कितना उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और या इस तरह से कुछ हमारा गाइडलाइन त्रिनेत्र है? जैसे उन्होंने पूछा, हमारा त्रिनेत्र है, रॉ नहीं है. कहीं पर भी रॉ अगर यूज नहीं कर रहे इनफैक्ट. ओह अच्छा, चलो ठीक है. Vinay, don't write raw in the movie. Then I'm just asking, like, you know, उस पर आपका रिएक्शन कैसे रहेगा, बिकॉज यू नो सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये जो वर्ड है फिल्म आई थिंक कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया पठान में, बट you know, ours is a different agency. All right, with that, ladies and gentlemen, thank you so much. That's all we have for you. We've covered enough, yeah? Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.